say students, in the next video we are going to, ये जो previous video था उसमें हमने क्या देख लिया, plane surface का, plane mirror का हमने देख लिया था. We have seen that how the images are formed, what is the laws of reflection for the it is given by the Snell's law, and what is the reflection. Reflection means what? It is the phenomena in which when a ray of light passes from one medium to another medium, then it returns back in the same medium. Okay, when a ray of light incident from one medium to another medium and return back in the same medium is called as what? Reflection. And then we have seen the laws of reflection. Laws of reflection क्या बोलते हैं? The incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface at the point of incidence all lie in the same plane. Then second, the angle of incidence is equal to angle of reflection. Then we have seen the plane mirror. What is the image? In the plane mirror, the image is always virtual, it is erect, and it is laterally inverted. Okay, another thing, number of images in the plane mirror. If the number of image is taken as what? N, and if suppose we are taking the mirrors, we have inclined in this particular way, then 360 by theta minus 1, that will give the number of images formed. If it is even, then this is there. If it is odd, that it is n is equal to 360 by theta. ये हमने देख लिया था. अभी हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया प्लेन मिरर के बारे में. अभी हमको पढ़ना है कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर. ओके, बिकॉज दिस इज अगेन अनदर important topic, that curved mirror. How to take the, there are some points in the curved surface. So there are two types of curved surface. Okay, curved surface are two. One is the concave and another is the convex. Okay, there are two surfaces of the spherical mirror, जिसको हम spherical mirror करते हैं. So it is having the two concave and convex. Okay, concave. Now we have to see how this concave mirror is formed and how the convex mirror is formed. ये पहले देख लेते हैं, तब तुमको आइडिया क्लियर हो जाएगा. तो हम क्या कंसिडर करते हैं, तो एक hollow sphere लेते हैं ग्लास का. ओके, सो आई विल ड्रॉ दिस फिगर हियर. सपोज दिस इज ए स्पेरिकल hollow sphere. ध्यान से देखो, विथ सेंटर O. ओके, रेडियस R. ओके, अभी हमको एक एक करके देखना है कॉन्केव मिरर कैसे है, किसे कॉन्केव मिरर कहते हैं. कॉन्केव मिरर मीन्स इट इज द स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ओके, अभी देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो सपोज मैं इस पार्ट को पेंट कर देता हूँ, so that ray of light, so which will be reflecting surface? This will be reflecting surface. ये कौन सा reflecting surface है? ये reflecting surface हो जाएगा. और इतने पार्ट को मैं कट कर लेता हूँ. Suppose I am cutting this glass in this way. So ये जो पार्ट मुझे मिलेगा, ओके, वो पार्ट कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? ये है. सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? रेडियस है. सो दिस मिरर विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर और स्फीयर. क्लियर हो गया? अगर सपोज मैं क्या करता हूं, ये जो पार्ट है इधर से पेंट कर देता हूं और रे ऑफ लाइट जो है इस तरफ से आके गिरता है,
तो ये क्या हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दिस पार्ट वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। सेंटर ऑफ द स्पीयर कहाँ, यहाँ पर है, मगर ये क्या हो गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने कौन सा किया है, वो ये किया हुआ है। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, convex mirror. Curved path it is. So when we cut this mirror in this way, so figure कैसे आ जाएगा इसका, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्वेक्स बनेगा। सो इस मिरर का जो रेडियस है वो इधर है। ओके, तो ये जो पॉइंट है जहाँ से इंसिडेंट होता है उसको कहते हैं पोल। तो ये मिरर क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मीन्स व्हाट, इट इज अ स्पेरिकल मिरर in which the reflecting surface is away from the center of the sphere of which mirror is a part. ये मिरर इसका पार्ट है, मगर ये सेंटर क्या बन रहा है, सर्कल कैसे बन रहा है इसका, इस तरफ है, तो सेंटर इस तरफ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ। मतलब कैसे रखना है, सपोज ये हथेली है ऐसा अपना, ऐसा अगर मैंने पकड़ के रखा है तो इस तरफ से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये अपना ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे वाइट पार्ट। यहाँ पे जब इंसिडेंट होता है रे ऑफ लाइट तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे इस पार्ट पे। और जब इस तरफ से जब रे ऑफ लाइट इधर से आके इंसिडेंट कर रहा है तब इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव। इस तरफ ये जो ब्लैक पार्ट है इधर, इसको अगर जाके रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा तो ये क्या कहलाएगा अपना, कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया। सो कॉनकेव के लिए अगर रे ऑफ लाइट हथेली में लिया है, इधर हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स किसे कहेंगे, जब रे ऑफ लाइट इस पार्ट में आके अपने हाथ पे गिर रहा है तो उसको कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया। तो ये हमने क्या देखा अभी, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अभी इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो इंसिडेंट पॉइंट है, दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट, ओके, इट इज कॉल्ड एज पोल। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या रेडियस है, ओके, दिस इज द रेडियस, इट इज डिनोटेड बाय आर। और ये पॉइंट क्या है, सेंटर है, इट इज कॉल्ड एज सी। सो पी इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर, हाँ, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। तो one by one again we have to understand topics of this. First is the pole. Pole is the midpoint of spherical mirror. It is denoted by P. Pole क्या है, midpoint of spherical mirror. Next is the center of curvature. Center of curvature is what, C. So C means what, center of curvature. It is the center of the sphere of which the mirror is a part. Center of curvature is what, C. C is the center of the sphere of which it is a part. Next is the radius of curvature. Next क्या है, radius of curvature. It is denoted by R. It is what, radius of the sphere of which mirror is a part. मतलब हम जो मिरर बना रहे हैं किससे बना रहे हैं, स्पेरिकल सरफेस से हम बना रहे हैं, याद रखना है। तो कौन सा पार्ट हम मिरर का कट कर रहे हैं, स्फीयर का कट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रहा है, पोल से भी पास हो रहा है, ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बन रहा है। तो सी पी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। तो ये हुआ अपना बेसिक पॉइंट। और नेक्स्ट इज द अपर्चर। अपर्चर मतलब किसे कहेंगे,
इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अपर्चर। क्लियर हो गया?